नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেশ্বরী স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেশ্বরী স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के 73 नंबर वार्ड अंतर्गत आल्डी ग्राम की ओर जाने वाली सड़क धंस गई। घटना में 2 दुकानें, सामुदायिक केंद्र और खेतों में दरारें आ गई हैं, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। कल सुबह यह हादसा हुआ, लेकिन दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पानी की लाइन फटने से गांव में पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है। इस सड़क का निर्माण 2022 में किया गया था। इस पर भी भूधसान हो गया। इलाके के लोगों तथा पार्षद का कहना है कि ईसीएल इस रास्ते को ठीक करने की दिशा में पहल करे और वो भी अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। আমাদের এখানে শিব মন্দিরের সামনে একটা ধস নেমেছে। এটা প্রায় আমি কিছুদিন আমি যখন জন্ম হয়নি তার আগে থেকে হয়েছে। তাই আমি ইসিএলকে রিকোয়েস্ট করব যে যেমন আমাদের কিছু ব্যবস্থা করা যাক, আর আমিও চেষ্টা করব যে কিছু করার জন্য। আপনাদের কি ধসে কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেখেছেন আপনি? ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে পুরো। রাস্তা গতকাল সকালে হয়েছে, রাস্তা পুরো ভেঙে গেছে। সামনে ঘর ছিল, ঘরগুলো ভেঙে গেছে। এই আপনাদের এখানে গ্রামে কত মানুষ থাকে? আপনাদের গ্রামে কত মানুষ থাকে এখানে? 5000 মানুষ থাকে। প্রায় ওই রাস্তা থেকে যাতায়াত করে মানুষ, স্কুল আসা যাওয়া করে। প্রায় সবই ওই রাস্তা থেকে নেয়ামতুর আসা যাওয়া হয়। আপনারা ইসিএলকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, জানিয়েছি। আচ্ছা, ইসিএলের কাছ থেকে কোনো রেসপন্স পাননি এখনো? না। আপনার নাম? সুনিতা বাউরি, ওয়ার্ড নাম্বার 73। আপনাদের ক্ষতি আমাদের এই রাস্তা ক্ষতি হয়েছে, তারপর জল, খাবার জল নাই, কাল থেকে জল বন্ধ আছে। জল পাইনি আমরা, নদীর জল এখন এইখানে নদীর জল নাই। এত কষ্ট করে আমাদের লাগানো হয়েছে, তারপরে এখন এই অবস্থা হয়েছে। পাইপ ভেঙে গেছে এবং এই রাস্তা আমাদের যাওয়া আসা সব বন্ধ আছে। আপনারা কতটা আতঙ্কে আছেন? আতঙ্ক মানে সারা রাত ঘুম নেই এখানে, কেউ ঘুমায় নেই সারা রাত। চারদিকে ঘর আছে আশেপাশে, সব সারা রাত জেগে থাকলো। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা চাইছি এটা আবার থেকে রাস্তা ভালো করা হোক এবং আমাদের জল দেওয়া হোক। কত লোক যাতায়াত করে এই রাস্তাটা দিয়ে? এই রাস্তা গোটা মিঠানি, আলডি, বেজদি, পাটমোহনা, আলোঠিয়া সব এই রাস্তায় যাওয়া আসা করে। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা চাইছি রাস্তায় যত তাড়াতাড়ি হোক এগুলো, রাস্তা জল সবগুলো তাড়াতাড়ির মধ্যে ঠিক হোক। আপনার नाम? আমার নাম सुनील कुमार सिंह। का बगल में ही तो धस हुआ है, घर भी गिर गया, तो आप लोग को किस तरह लग रहा है? मदरसा, हम लोग का मदरसा है, ईदगाह है, मंदिर है, मस्जिद है, इसका बीच में धस हो गया है। आम आदमी को आना जाना बहुत तकलीफ हो रहा है। बहुत दिन पहले ही अनलिकलमेंट चला था, मगर अभी तो मोटा मोटी 10-15 साल से चला वाला नहीं है। पहले बैठा था जमीन, उसका भी दोबारा ही जमीन बैठा। तो आप लोग क्या लग रहा है अभी? लग रहा है कि अब सरकार व्यवस्था करे तो बहुत अच्छा है। इसके अब सरकार के ऊपर है, ठीक है। यहाँ तो ज़्यादातर गरीब है, गरीब टाइप का आदमी है। यहाँ पर आदमी कितना आदमी रहता है इस गांव में? मोटा मोटी हम लोग का ऐसे टोटल वोटर हम लोग का 8,000 से ऊपर है। इस गांव का पूरा गांव में 8,000 से ऊपर है, मगर हम लोग का स्कूटनी ऊपर उड़ के हम लोग का मोटा मोटी 5,500 वोट हम लोग का है यहाँ पर, पूरा आल्डी विलेज में। अच्छा अच्छा। उसमें जितना भी जाति है, बंगाली, बिहारी, मुस्लिम, सब मिला के, मतलब सभी हम लोग मिला जुला है, सब मिला के हम लोग। तो अभी तो आप लोग का जो ईदगाह है उसमें तो जा नहीं पाएंगे ना, अभी तो जाना ठीक नहीं, संभव नहीं है, इसलिए कि कहाँ पर क्या हो जाएगा दुर्घटना बोलना मुश्किल है। इसलिए अभी हम लोग सबको जो है रोक दिया है कि कोई किसी तरह से बीच में फटा हुआ ज़मीन है या माने ये है डेंजरस ज़मीन है, उसमें जाना नहीं है। सबको अभी हम लोग रोक के रख रहे हैं। यहाँ पर आदमी भी है उसको मैंने रोकने के लिए, और बेसिक भाग हम लोग का काउंसलर जो है कल चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया है, मगर अभी तक काउंसलर भी बोले, ईसीएल में भी कंप्लेंट किया, काउंसलर यहाँ पर 2-3 बार आके देखना सुनना सब कुछ कर रहे हैं, मगर
अब इसका आगे क्या रास्ता निकलेगा वो अब कहना मुश्किल है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो रास्ता माने फट गया, डैमेज हो गया, इसको सरकार माने ये कर दे, रिपेयरिंग कर दे। और जो फट गया उस समय बालू अगर वैरायटी हो तो और अच्छा है। बालू वैरायटी करने से ठीक रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आइनुल। মানে গতকাল সকালে একটা ধস নামে আপনার এই মূলত আরডি থেকে নেমতপুর যাওয়ার এটি প্রধান রাস্তা। এই রাস্তার উপরে প্রায় 1 থেকে 150 মিটারের মতন জায়গা প্রায় বসে যায় এবং বসে যাওয়ার পর রাস্তাটা প্রায় অচল হয়ে যায়, মানুষের যাতায়াত খুবই অসুবিধা হয়। এইখানে আপনার মানে কলিয়ারি যখন ন্যাশনালাইজ হয় তার আগে এগুলা সব আপনার কলিয়ারি ছিল, প্রাইভেট কলিয়ারি, বিভিন্ন বেঙ্গল কল, ইকুইডেবল কল, বিভিন্ন কলিয়ারি, তারা তো বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে কিছু ইলিগাল মাইন্স হয়, কিন্তু সেগুলো তো আপনার 2009-10 সব বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে কোনো ইলিগাল মাইন্স কোনো কিছু এখানে আর চলে না। তারই ফলে আশা করছি এগুলো এই ঘটনা ঘটেছে। এখানে তো এর আগেও ধস হয়েছে, আপনার এর পাশেই মসজিদ আছে, ওখানে ধস হয়েছিল। তো এই যে ধস ব্যাপার হচ্ছে, এলাকার মানুষ কি আতঙ্কে আছে? এলাকার মানুষ পুরো আতঙ্কে, এবং এটা নিয়ে আপনার সুপ্রিম কোর্টে কেসও হয়েছিল। এটা ডিজিএমএস অফিস থেকে আমাদের এই এলাকাকে মানে মূলত আলডি গ্রামকে সম্ভবত 97-এ আপনার সাবসাইড বলে ঘোষণাও করে। তারপর ওটা কোর্টে কেস হয়, কোর্টে কেস হওয়ার পর জিতার পর তারপর তো ওই আজ আর কাল কেন্দ্র সরকার আজ আর কাল করে যেটা হয় আর কি। মানুষ তো পুরো চিন্তিত, পুরো গ্রামের মানুষ পুরো চিন্তিত। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি মূলত এটা যারা বিশেষ করে এখানে যাদের ঘরগুলোর পুরো ভাঙচুরের অবস্থা আছে, ভেঙে চুরমা, তাদেরকে যদি সিএল নতুন কোনো কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে কিছু ভালো হয়, এবং রাস্তাটা যদি রিপেয়ারিং করে দেওয়া হয় তাহলে খুবই ভালো হয়। এইবারে ধসে কি কি ক্ষতি হয়েছে? এবারে ধসে দুটো দোকান ভেঙে গেছে, একটা কমিউনিটি দুটো দোকান ভেঙে গেছে, একটা কমিউনিটি সেন্টার ছিল সেটাও ভেঙে গিয়েছে। আর এইদিকে যে ঘরগুলো আছে সেগুলো সব ফাটল দেখা দিয়েছে। এরা গতকাল আমি বলি, এবং ওরা নিজেরাও কাল থেকে এরা ঘরে কেউ নেই, সব ওর বাড়িতে আছে, ওর বাড়িতে, ঘরগুলো সব ফাঁকা, সবাই আতঙ্কে আছে। সবাই আতঙ্কে আছে। আপনার নাম? আমার নাম উদয় কর্মকার। আপনি কি পোস্টে আছেন? আমি তৃণমূল কংগ্রেসের এই ওয়ার্ডের 73 নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভাপতি। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही गई है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अब पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। इसके खिलाफ आज आसनसोल में आदिवासी समाज के लोगों ने पश्चिम बर्धमान ज़िला शासक दफ्तर को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि उनको आशंका है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसके खिलाफ आज ये ज्ञापन सौंपा गया ताकि केंद्र सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। यूसीसी का साथ केंद्र सरकार आदिवासी अस्तित्व विनाशकारी यूसीसी काला कानून मानछिना आदिवासी अस्तित्व विनाशकारी काला कानून मानछिना आदिवासी अस्तित्व विनाशकारी यूसीसी काला कानून मानछिना यूसीसी का साथ केंद्र सरकार आदिवासी एकता जिंदाबाद। মূলত এটা কেন্দ্র সরকার যে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের একটা প্রস্তাব রেখেছেন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে, তো এই ইউনিফর্ম সিভিল কোড আমরা আশঙ্কা বোধ করছি যদি এটা বলবৎ হয় তাহলে আমাদের ওই মানে আদিবাসীদের পুরো অস্তিত্বটাই শেষ হয়ে যাবে, এটা আমরা আশঙ্কা করছি। এই জন্যে আমাদের এই বিপদ। কোথায় গেছিলেন? হ্যাঁ, কোথায় গেছিলেন? এখানে ডেপুটেশনের কথা দিলেন? সাহেবকে বলেছিলাম, ডিএম সাহেব রেফার করেছেন যে এডিএম ডেভেলপমেন্ট নেবেন, পাল সাহেব নিলেন, এবং আমাদেরকে ওনার কাছে তো কিছু নাই, ওনাকে বললাম যে আমাদের এই ইয়েটা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে ল কমিশন আছে, মেম্বার সেক্রেটারি, মাননীয় মেম্বার সেক্রেটারির কাছে ল কমিশনে ওখানে পাঠিয়ে দিন। আজকে উনি যে পাবলিক নোটিশ করা হয়েছিল সরকার থেকে 14ই জুন, এবং সেখানে উল্লেখ ছিল যে যার ইউসিসি নিয়ে যদি কারো বলার থাকে তাহলে উইথিন 30 ডেজ মানে 1 মাসের ভেতরে নিজের মতামত এখানে লিখে পাঠাতে পারে আপনার সাইন মানে এই ঠিকানায়। আমরা আজকে হচ্ছে বোধহয় লাস্ট ডেট, সেই সাহেবকে বললাম যে আজকের জন্য এটা ইমেল করে পাঠিয়ে দেন, আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হব। আপনার নাম পড়েছে? আমার নাম হচ্ছে মতিলাল সরেন, আমি অল ইন্ডিয়া আদিবাসী পরিষদ কমিটি যেটা আসানসোল দুর্গাপুর ব্যাপী আছে তার সেক্রেটারি। তিনি হচ্ছেন ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট, পড়া সমাজের রাজ্য সভাপতি। তিনি হচ্ছেন আদিবাসী বুড়াল গ্রাউন্ডের সেক্রেটারি। হচ্ছেন
अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गोराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गोराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से आज आसनसोल क्लब में 2023 के सावन मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी तथा आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार नरेश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संगठन की अध्यक्ष निधि पसारी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से इस सावन मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें फैशन, शॉपिंग, मनोरंजन आदि के स्टॉल हैं। इसके अलावा गेम जोन, फूड कॉर्नर का भी आनंद उठाया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक निःशुल्क लॉटरी प्रतियोगिता भी होगी जो कि रात को 8 बजे आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के हाथों से निकाली जाएगी। उन्होंने कहा यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस और कुछ बड़े बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है ताकि यहाँ पर सभी का मनोरंजन हो सके। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में जीतने वालों को आकर्षक इनाम भी दिए जाएंगे। उनका कहना था कि सावन मेले के आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करना है, महिला उद्यमियों को एक मंच प्रदान करना है ताकि वो व्यवसाय में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को सबके सामने उजागर कर सकें। यहाँ डिज़ाइनर राखी, कपड़े, आभूषण, सजावट की अन्य सामग्रियाँ भी उपलब्ध हैं। वहीं संगठन की सचिव रेखा गाड़ीवान ने बताया कि आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति हमेशा कोशिश करती है कि ऐसे कुछ कार्यक्रम किए जाएं जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कारगर कदम उठाए जा सकें। ये सावन मेला उन्हीं में से एक प्रयास है। इसका मकसद महिलाओं को आगे लाना है ताकि वो सिर्फ अपने घरों तक सीमित ना रहें, बाहर निकलें और अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकें। इसके साथ ही उनके अंदर छिपे हुए व्यापारिक प्रतिभा को भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं संगठन की सदस्य मधु डुमरेवाल का कहना था कि इस तरह के प्रयासों से समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कारगर कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि महिलाएं सिर्फ अपने घरों तक सीमित ना रहें और व्यवसाय में भी आगे बढ़ सकें।
ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में जरा बताइए। ये एक सावन मेला है। यहाँ पर हम लोग हर साल लगाते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि यहाँ पे तरह तरह की दुकानें लगती हैं जिसमें सभी बहनें एक साथ सामान देख भी सकती हैं और लेती हैं, और साथ ही साथ लोगों की पब्लिसिटी भी होती है कि उनके घर पे या उनके शॉप में ये सामान मिलता है। आज भी यहाँ पे स्टॉल हम देख रहे हैं, बहुत सारे स्टॉल लगे हैं। कितने सारे स्टॉल? यहाँ पे हम लोग टोटल 24 स्टॉल्स लगाए हैं। बाहर में नॉन एसी भी हैं, एसी के अंदर 24 हैं। उसके बाद अब हमारे बाहर में फूड स्टॉल्स हैं, गेम स्टॉल्स हैं। यहाँ पे क्या क्या उपलब्ध? यहाँ पे राखियाँ हैं, कपड़े हैं, आपके जितने मतलब ज्वेलरीज हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं, भांति भांति के सामान हैं। ये सब क्या महिलाओं द्वारा खुद बनाई गई है? कुछ वो लोग खुद बनाते भी हैं और कुछ वो लोगों की बुटीक है जो बाहर से बनवाती भी हैं, मंगवाती भी हैं। हर तरीके का सामान यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये जो मारवाड़ी महिला समिति द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम ये मेला लगाने से हम एक तो बहनें सब सावन में एंजॉय करती हैं, एक साथ मिलती हैं, या हम बच्चों की एक्टिविटी भी कराते हैं। जैसे आज हमारा 2 बजे से फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम है, ड्राइंग कंपटीशन है, तो सब बच्चे एक साथ मिलते हैं, सब आते हैं, सब एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, गेम खेलते हैं। तो एक दिन का हमारा ये मतलब मनोरंजन का कार्यक्रम हो जाता है। आपका नाम और परिचय? मैं आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति की शाखा सचिव रेखा गाड़ीवान। आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से हर वर्ष की भांति इस बार भी सावन मेला, सावन एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है, जो घर से कार्य करती हैं उनके लिए ये व्यवस्था की जाती है कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उनका परिचय करवाएं और उनका सेल जो है उनकी बिजनेस को आगे बढ़ाएं। हम लोग ये हमारा उद्देश्य रहता है। इस उद्देश्य के पीछे हमारा जो भी इनकम आता है वो भी चैरिटी पर्पस पे जाता है। हमारा कोई हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से ही हम लोग कार्य करते हैं। इसमें हमें आसनसोल क्लब का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हम लोगों ने बच्चों की एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें आज हमारा छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और बड़े बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। यहाँ फ्री एंट्री है, चार्जेस कुछ नहीं लग रहा है हमारा। साथ ही हमारा यहाँ पे फ्री लकी ड्रॉ कूपन है जो कि रात को 8 बजे निकाला जाएगा। अमरनाथ दा के शुभ हाथों से हमारा जो आज का प्रोग्राम है उसका उद्घाटन किया गया। आगे भी हमारा यहाँ पे बेसिकली हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे भी काफ़ी फोकस किया है, होममेड प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे हमारा एक स्टॉल है जिसमें ऑर्गेनिक अनाज है, आपके चावल, दाल, आटा वो सब आपको उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही यहाँ पे स्किन प्रोडक्ट भी है, डॉक्टर के द्वारा जो घर पे खुद होममेड बनाया जाता है स्किन प्रोडक्ट। साथ ही पुरलिया, रानीगंज, कुल्टी, बड़ाकर, बोकारो सभी जगह से यहाँ पे स्टॉल्स लगाने के लिए हमारी बहनें आई हैं। और बच्चे यहाँ पे खुद से, बच्चों को भी ये कला सीखनी होती है कि कैसे वो जो मॉनेटरी कैसे कमाया जाता है। तो ये बच्चे भी खुद से स्टॉल्स लगाए हैं कि हम लोग खेलें और मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखें कि किस तरह से अर्निंग की जाती है, पैसे के महत्व को समझें। बाहर में आप लोगों ने देखा होगा फूड स्टॉल भी लगे हुए हैं। हमारे फूड स्टॉल भी काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रख के लगाया गया है कि उसमें भी स्वच्छता को भी काफ़ी ध्यान रखा है। और साथ ही हमारी एक विशेषता है, यहाँ पे 2 NGO के द्वारा भी स्टॉल्स लगाए गए हैं जो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक आशा निकेतन और दूसरा हमारे ब्लाइंड स्कूल के बच्चे जो अपने हाथों से सामान बनाते हैं वो वहाँ पे लगाए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों तरफ से लोगों को जुटाने की कोशिश की है कि हर तरह का हम लोग यहाँ पे एक ढांचा दे सके, एक आयाम दे सके इस मेले को। मैं निधि पसारी आसनसोल शाखा की अध्यक्ष हूँ। जो जिन बहनों ने विशेष सहयोग दिया है, हमारी कन्वेनर गुंजन जी अग्रवाल है, उनका विशेष सहयोग रहा। साथ ही मधु जी डुमडेवाल वो हमेशा हमें दिशा निर्देश देती रहती है। हमारी शाखा सचिव रेखा गाड़ीवान, कोषाध्यक्ष रंजना अग्रवाल, पूनम जी गोयल, सिल्की जी मस्करा, रोशनी चालान, रचना माखरिया, साथ ही सभी हमारी कमेटी मेंबर्स, किसका नाम लूँ और किनका छोड़ूँ, हमारी जो नई वर्तमान अध्यक्ष निर्मला जी गुटगुटिया, सभी ने बहुत भरपूर सहयोग दिया है। उसी के कारण आज हमारा ये मेला, इतना सुंदर मेला सच पाया है। धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम हो रहा है सावन मेला, इसके बारे में जरा बताइए और इसका मकसद क्या है? ये सावन मेला जो आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति द्वारा लगाया गया
और ये हम करीब 7-8 वर्षों से ही लगा रहे हैं, विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत लगाते हैं। इसका मकसद मेनली रहता है जो महिला उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें और लोगों को उनके व्यापार के बारे में मालूम हो, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं घर से कोई कोई करती हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है। ये एक एडवर्टीज़मेंट का भी साधन है। अगर यहाँ ये स्टॉल लगाती है तो बहुत से लोगों को मालूम होता है कि इनके पास ये प्रोडक्ट है और उनकी सेल को, एक उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है। यहाँ करीब 45 स्टॉल लगे हैं, सेल स्टॉल प्लस गेम स्टॉल और फूड स्टॉल सभी लेकर के। रानीगंज, बड़ाकर, आसनसोल, बोकारो सभी जगह से आए हैं और सभी का सहयोग है। आज अमरनाथ दा ने आया, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ दा भी आए थे। उन्होंने काफ़ी समय दी, हर एक स्टॉल को विज़िट किया और सभी को अपनी बातों से, वक्तव्य से बहुत सपोर्ट किया। मैं मधु डुमरेवाल, महिला समिति जोनल हेड। आज आसनसोल में एप्पल मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम आई डेस्टिनी का उद्घाटन हुआ। आसनसोल के गैलेक्सी मॉल में इस शोरूम का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर आई डेस्टिनी के डायरेक्टर विजय गुगर तथा बिजनेस हेड सोनत राय और आई डेस्टिनी के तमाम कर्मचारीगण उपस्थित थे। मैं आई डेस्टिनी का डायरेक्टर हूँ। ये आसनसोल में हमारा पहला दुकान है। टोटल में ईस्ट इंडिया में हमारा 20 दुकान के आसपास है, इंक्लूडिंग सर्विस सेंटर। वी आर अक्रॉस कलकत्ता, रांची, जमशेदपुर, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, बोकारो और अब फाइनली आपका शहर में हमारा पहला स्टोर आया है। ये एप्पल का ऑथराइज रीसेलर स्टोर है। इसका मतलब ये है कि आपको नया माल मिलेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि रीसेलर का मतलब ये है कि हम रिफर्बिश्ड माल बेचते हैं, लेकिन रिफर्बिश्ड नहीं बेचते हैं। दिस इज़ न्यू माल। एप्पल बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है वो रीसेलर यूज़ करता है, बिकॉज ये एप्पल डायरेक्टली नहीं बेच रहा है, हमारे थ्रू आपको बेच रहा है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड रीसेलर। आसनसोल का ये पहला स्टोर ऐसा होगा जो हम आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, जो अभी आसनसोल में नहीं था। You can come over here for your problems and we can help you try and resolve your issues. Apart from that, the big news is that now Asansol will also have, जिस तरह कलकत्ता में सेम डे लॉन्च होता है फ़ोन का, उस प्रकार सेम डे लॉन्च वर्ल्ड वाइड होता है, वो आसनसोल में भी लॉन्च होगा। आपको माल मिलेगा आईफोन जब नया लॉन्च होता है तब। एप्पल का पूरा रेंज अवेलेबल है यहाँ पे, डेमोज़ वगैरह जो आपको देखना चाहते हैं, चाहे वो मैकबुक हो, आईपैड हो, वॉच हो या आईफोन हो, सबका डेमो आपको मिलेगा। ट्रेंड स्टाफ है हमारा यहाँ पे जो एप्पल से सर्टिफाइड है, तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन फॉर द कस्टमर कि कोई भी प्रोडक्ट का अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो यहाँ आएँ और एक्सपीरियंस करें एप्पल का दुनिया को। इन बेंगली বাংলায় বলছি। নমস্কার। এটা অ্যাপেলের মানে আই ডেস্টিনি হচ্ছে অ্যাপেলের শৌনক। আচ্ছা, মাইসেলফ শৌনক ফ্রম আই ডেস্টিনি। হি ইজ দ্য বিজনেস হেড অফ আই ডেস্টিনি। সো এটা অ্যাপেল আই ডেস্টিনি হচ্ছে অ্যাপেলের অথরাইজড রিসেলার, যেটা মিস্টার বিজয় সেড কি রিসেলার ডাজন্ট মিন কি আমরা প্রোডাক্টটাকে কারো থেকে নিয়ে বিক্রি করছি। এটা হচ্ছে আমাদের ডাইরেক্ট প্রোডাক্টস আমরা সেল করছি। আর এখানে পুরো রেঞ্জ, এন্টার রেঞ্জ অফ অ্যাপেল প্রোডাক্টস যেটা রয়েছে সেটা সব ডিসপ্লে রয়েছে। এটা আইপ্যাড, ম্যাক, আইফোন, এয়ারপডস সব ডিসপ্লে আপনি এখানে পাবেন, সব কিছু প্রোডাক্ট রেঞ্জ পাবেন। এটা হার্ডলি আপনি আসানসোলের কোনো জায়গায় পাবেন, মানে সব জায়গায় হয়তো আপনি এত রেঞ্জ, এত ওয়াস্ট ডিসপ্লে পাবেন না। সেকেন্ডলি আপনি যদি বলেন এখানে কিসের জন্য কাস্টমার আসবে, টু হ্যাভ দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লাস এক্সপিরিয়েন্স অফ বাইং অ্যান অ্যাপেল ফ্রম অ্যান অ্যাপেল স্টোর অ্যান্ড বলতে গেলে আমাদের যে সার্ভিস উই প্রোভাইড, ঠিক আছে। আসানসোলে এর আগে এরকম করে ডাইরেক্ট সার্ভিস নেই, এটা আমরা প্রথমবার ডাইরেক্ট সার্ভিসও দেবো। যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাদের পুরো স্টাফ আর ট্রেন টু সার্ভ আওয়ার কাস্টমার্স।
সো হোপফুলি এটা আমাদের একটা লং টার্ম টেনিওর উইথ আসানসোল, অ্যান্ড উই উইশ অল দ্য আসানসোলাইটস all the very best and to come and experience this in our store. Thanks. আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে Yeah, thank you. Apart from selling Apple products, हम यहाँ पे जो एक्सेसरीज़ भी बेचते हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो आसनसोल में अवेलेबल नहीं है थर्ड पार्टी एक्सेसरीज़ में, जैसे मार्शल का स्पीकर हो गया, कवर्स हो गए, वो आसनसोल में प्रीमियम रेंज जो है, क्वालिटी रेंज जो है, जिससे आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है आपका फ़ोन के लिए। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव ऑप्शंस ऑफ फाइनेंस। अगर आप बजाज फाइनेंस करवाना चाहते हैं, HDFC फाइनेंस करवाना चाहते हैं, तो हमेशा यहाँ पे लोग रहते हैं जो आपको सहायता दें, जिससे आप प्रोडक्ट्स को इजी इंस्टॉलमेंट्स में खरीद सकें। তো এখানে যেটা মানে ক্যারিয়ার যদি আমি বলতে চাই এটা এলাবোরেট করে যদি যান, সেটাতে আপনি একটা যে কোনো একটা ব্যাক কভারও লাগাবেন, একটা স্ক্রিন গার্ড লাগাবেন, তো ওটা অল ইন অল এন্ড টু এন্ড আমরা এখানে সব প্রোভাইড করি। থার্ড পার্টি অ্যাক্সেসরিজ যেটা বলতে চাইছিল, যে স্টার্টিং ফ্রম ব্যাক কভার, ওয়্যারলেস চার্জার, স্ক্রিন গার্ড সব কিছু আছে। অ্যাপেলের নিজস্ব রয়েছে, প্লাস থার্ড পার্টি অ্যাক্সেসরিজও রয়েছে, সেটা দুটোই আপনি এখানে পাবেন। আর ফিনান্সে রয়েছে আমাদের বাজাজ ফিনান্স, HDFC 9 months EMI রয়েছে, 24/0 EMI রয়েছে, প্লাস উই হ্যাভ অ্যাট্রাকটিভ ক্যাশব্যাক অফার্স উইথ HDFC কার্ডস, ঠিক আছে। প্লাস এক্সচেঞ্জের উপরে আপনার যদি কোনো পুরনো ডিভাইস থাকে, আইফোন বা নট আইফোন নেসেসারি, যদি কোনো ফোন থাকে বা ল্যাপটপ থাকে, সেটা বদলে চেঞ্জ করে যদি আপনি আইফোন বা ম্যাক নিতে চান, তো ডেফিনেটলি আমাদের আরও ভালো এক্সচেঞ্জ অফার্স রয়েছে, যেটা ইউজ করতে পারেন। আর এখন আমাদের স্টুডেন্ট অফার চলছে, স্টুডেন্ট ডিসকাউন্ট, BTS ব্যাক টু স্কুল বলে এটা অ্যাপেল থেকে, যেটাতে আমরা ম্যাকবুক এবং আইপ্যাডে আমরা খুব ভালো লিকুইডেটিভ অফার্স দিচ্ছি। সো আমরা এটাও বলছি আপনাদের মাধ্যমে যে যত স্টুডেন্টস রয়েছে তারা একবার ভিজিট করতে পারে আমাদের স্টোর। মানে এটা অ্যাপেল ইজ অ্যান অ্যাসপিরেশনাল প্রোডাক্ট ফর অল, তো সেটা ভিজিট করে একটা এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারে। আমরা ভালো অফার্সও দিচ্ছি। আমি ডিরেক্টর আছি, আর এনি আমি সৌনক রয়, আমি বিজনেস হেড অফ iDestiny, যত স্টেট iDestiny রয়েছে তার সেলস অ্যান্ড অপারেশনসটা হেড করি। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।